Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, students. बस मुझे रहने दे, अच्छी लग रही है. I'm surprised to see the new name in the list. Mr. Tejas Arora. Good morning, sir. Good morning, Tejas. How are you? Sir, fine. For some days, so I literally forgot that you are also the part of BBA. सर तबीयत ठीक नहीं हुई सर मेरी. अच्छा चलो ठीक है. Is it well now? सर थोड़ा थोड़ा. चलो that's good. Soon you'll recover. आज से नवरात्र शुरू है ना. Soon you'll be getting the blessings and then you will get well. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. So a total 8 students. Let the students join and then we'll start the class. Good morning, sir. Good morning. Good morning. In the last class, if you remember, हम लोगों ने एक branding का एक overview ले लिया था, and no, relating to the same topic, we'll be discussing about brand positioning today. Okay. Yes, sir. Yes, sir. There'll be a little cut down in the timings today in the lecture because leaving the lecture a little early. Reason being, you know that it is Navratri today, and I'm also a little busy. So no, don't worry. But we'll be discussing much about brand positioning, and then I'll be winding up the class. All right. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. So, who took the first lecture? Sir, Paras, sir. ठीक है. What was the strength? Strengths. Sir, maybe 18. 18. Yes, sir. चलो ठीक है. 12 तक तो आ ही गए हैं. Let's see Yes, how sir. many else join. तेजस, आप क्लास अकेले अटेंड कर रहे हो या रुद्राक्ष भी क्लास अटेंड कर रहे हैं आपके साथ? सर मैं सर अपनी फैक्ट्री में हूँ, वहीं से कर रहा हूँ. अच्छा, आप फैक्ट्री में से अटेंड कर रहे हो. और रुद्राक्ष कहाँ है? सर वो घर पे होगा. वो घर पे होगा. वो क्लास अटेंड नहीं करेंगे? सर फोन करके पूछता हूँ सर अभी. Okay. All right. 13 students are there in the class. Fine. Let me. I'll not wait anymore, and I'll start the class now. Students can join meanwhile. All right. Okay. Fine. सबसे पहले स्टार्टिंग में बात करते हैं. तो कल आप लोगों से मैंने एक डिफरेंस पूछा था. डिफरेंस बिटवीन दी एडवर्टाइजिंग एज वेल एज ब्रांडिंग. राइट. सो दोनों के बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो क्या है? Who will tell me? What is the difference between branding and advertising? कल भी मैंने आप लोगों के सामने कुछ चीजें डिस्कस करी थी, and I asked you, and then you people told me. Yes. Advertising means advertising का मतलब क्या होता है? Yes, anyone. कल मैंने आप लोगों को कुछ बताया था एडवर्टाइजिंग का मतलब. I hope I'm audible. Kirti, are you searching? I'm not able to listen to you people. Am I audible? Yes, sir. Right. Yes, Actually, sir. I was not able to listen to any Yes, student. sir. मैंने पूछा था कि एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है. किसी की आवाज ही नहीं आई. Good morning, sir. Good morning. Yes. What do we mean by advertising? Because ultimately we have to differentiate between advertising and branding. Then we must be aware what advertising is. Then we must be aware what branding is. Right? Yes, sir. Okay. So let me tell you somewhere advertising means what? The promotion of any particular product, right? Any particular process or way through which we try to make our customer aware about our product, that is called as advertising. Am I clear? Advertising का main जो target होता है वो क्या होता है? क्या product को बिकवाना ही केवल target होता है advertising का? No, sir. डिपेंड करता है कि हम हमारे कस्टमर के किस पर्टिकुलर लेवल को टारगेट कर रहे हैं. अगर एक ऐसा कस्टमर है जो कि अनअवेयर है हमारे प्रोडक्ट के बारे में, तो एडवर्टाइजिंग की जाती है ताकि हम अपने कस्टमर को अवेयर कर सके. राइट.
अगर हमारा कस्टमर ऑलरेडी हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानता है तो हम एडवर्टाइज करते हैं ताकि वो उसके मन में एक इंटरेस्ट क्रिएट हो हमारे प्रोडक्ट को लेकर के। अगर एक ऐसा कस्टमर है जिसके मन में ऑलरेडी इंटरेस्ट है हमारे प्रोडक्ट को लेकर के, देन वी एडवर्टाइज ताकि वो प्रोडक्ट को परचेज करने का प्लान करे। Am I clear? राइट। और अगर वो एक बार ऑलरेडी परचेज कर चुका है, देन वी एडवर्टाइज कि वो हमारे प्रोडक्ट हमारे ब्रांड के साथ हमेशा जुड़ा रहे, ताकि आने वाले समय में भी अगर उसको वही प्रोडक्ट खरीदना है दोबारा तो वो हमारे ब्रांड का ही प्रोडक्ट खरीदे। इतनी चीज समझ में आती है? Yes, sir. राइट, फाइन। सो अल्टीमेटली अगर हमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़े यहाँ पे ब्रांडिंग में और एडवर्टाइजिंग में, तो एडवर्टाइजिंग देखिए इतना तो चीज क्लियर है कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस या वे के जरिए जब हम अपने कस्टमर को अपना प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं वो एडवर्टाइजिंग कहलाता है। लेकिन ब्रांडिंग इज अ 360 डिग्री प्रोसेस। व्हाट प्रोसेस द ब्रांडिंग इज? 360 राइट, 360 डिग्री। अच्छा, व्हाट आई मीन व्हाई एम आई सेइंग कि 360 डिग्री होता है? 360 डिग्री का मतलब क्या होता है? एक राउंड, एक सर्कल, राइट? Yes. 360 डिग्री पूरा राउंड होता है एक। ओके, Yes, sir. तो राउंड होने का मतलब यहाँ पे क्या है कि 360 डिग्री का मतलब है कि एक कस्टमर को अपने एक एक एक्टिविटी से अपने कंपनी के स्टैंडर्ड्स का एक्सपीरियंस देना, राइट? ब्रांड का आप लोगों ने कल जब हम लोगों ने बात करी थी, मैंने आपसे पूछा कि अगर आपको ब्रांड को एक शब्द में डिफाइन करना हो तो क्या होगा, तो आपने कहा सर क्वालिटी होगा, वैल्यू होगा, राइट, प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी होगी या कंपनी की गुडविल होगी, ऐसी तमाम चीजें थी। तो आप ये सारी चीजें कब कर पाते हो? जब आप अपने एक एक एक्टिविटी से अपने कस्टमर को अपने स्टैंडर्ड्स का, अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का प्रूफ देते हो, उनको एक्सपीरियंस देते हो, राइट? अच्छा ठीक है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा ये वाली चीज। आप नॉर्मल किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, राइट? एक रेस्टोरेंट है जहां पे आप एंटर करते हैं, एंटर करते समय आपने नॉर्मली गेट खोला, गेट खोलने के बाद आप जाकर के बैठे, राइट? बैठने के बाद आपने देखा कि ठीक है सेल्फ सर्विस है, वहां पे आप गए ऑर्डर करने के लिए, आपने ऑर्डर किया, मेन्यू देख करके वहां पे कैश पे किया और वहां से अपना फूड आइटम जो भी आपने रेडी मतलब लिया था वो लेकर के ट्रे में आप वापस आ गए। जस्ट लाइक मैकडी का कॉन्सेप्ट आप ले लीजिए, मैकडी इज जस्ट लाइक दैट ओनली कि Yes, sir. मैकडी में आप जाते हैं, खुद ही गेट ओपन करते हैं, अंदर जाकर के सेल्फ सर्विस होती है, काउंटर पे ऑर्डर किया, पेमेंट किया और आप अपना ट्रे लेके आ गए, राइट? इसके अलावा तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना किसी का, No, sir. राइट? ठीक है। अब एक चीज होती है, आप किसी और अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां देखते हैं, ऐसा नहीं है कि मैकडी अच्छा नहीं है, इट डिपेंड्स कि हर पर्टिकुलर आउटलेट पे कुछ कुछ पॉलिसीज फॉलो होती हैं, राइट? उसके पीछे क्या रीजन है मैं वो भी आपको बताऊंगा। दूसरी चीज है, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आप जैसी रेस्टोरेंट में पहुंचते हो, एक बहुत ही ज्यादा वेल ड्रेस्ड जो एक गार्ड है वहां पे बैठा हुआ, बिल्कुल शाही अवतार में, मतलब ये जो रेड कलर का पूरा जो होता है ना कोट टाइप का पहन करके, पगड़ी लगा के बाकायदा, और साथ में एक छड़ी भी है उसके, और वो आपको सलाम कर रहा है, एंड देन ही इज ओपनिंग द डोर फॉर यू कि प्लीज कम सर एंड मैम, है ना? ऐसे करके उसने गेट ओपन किया एंड देन आप उस रेस्टोरेंट में जाते हो, तो पहले ही आपको जो गेट पे एंटर करते समय फील आएगी, इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफरेंट। क्लियर है एक चीज? ओके, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी बात, जैसे ही आप अंदर जाकर के बैठते हो, एक वेटर आता है जो आपके लिए जिस टेबल पे आपको बैठना है वो दिखाता है, प्लस आपके लिए चेयर को पुल बैक करता है ताकि आप बैठ सको नॉर्मली। जब आप बैठ जाते हो तो चेयर को पुल इन करता है। Am I clear? राइट, तो एक चीज वो हो गई। उसके बाद बात आती है कि जैसे ही आप 1 मिनट बैठते हो, सबसे पहले कोई आता है आपके लिए कटलरी सेट करता है, प्लस आपको मेन्यू देता है कि आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे, राइट? एंड ही स्टैंडिंग राइट बिसाइड टू यू, एक डायरी लेकर के, जिसमें आप जो जो बोलोगे वो नोट करता जाएगा। तो दूसरा एक्सपीरियंस ये हो गया, राइट? तीसरी चीज है कि आप जब आपके लिए जब फूड आइटम आ रहा है तो वो भी वेटर ही लेकर के आ रहा है, प्रॉपर वहां पे सेट कर रहा है, प्लस आपके प्लेट में प्रॉपरली सर्व करके भी जा रहा है, राइट? तो दूसरी चीज वहां पे, तीसरी चीज ये आ गई। चौथी चीज होती है कि जब आपको बिल पे करना है तो यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, आपसे वो पूछेंगे आपको कैश करना है या कार्ड करना है। कैश करना है तो एक प्रॉपर बिल बुक आएगी जिसमें बिल रख के आएगा, आप उसमें कैश रख दीजिए। अगर आपको कार्ड पेमेंट करना है तो या तो वो आपके लिए मशीन लेकर के आ जाएंगे, आजकल पॉज मशीन चलती है। पॉज मशीन का मतलब क्या होता है? पॉज मशीन एटीएम से पेमेंट तो करते हैं ना, डेबिट कार्ड से सब करते हैं, सबको पता है कि डेबिट कार्ड से पेमेंट कैसे होता है ना? क्योंकि टीनेजर्स में अगर यही नहीं पता होगी तो फिर अपने लोग जाकर के अलग से कैसे फन कर पाओगे आप लोग, है ना? आजकल कार्ड ही चलते हैं सबसे ज्यादा, कैश जल्दी कोई अलाउ करता नहीं है कि रखो ज्यादा पास में, सब कार्ड रखना चाहते हैं। तो पॉज मशीन क्या होती है? Am I audible to everybody? Yes, sir.
ठीक है, तो बताते रहा करो। यस और नो सर, नहीं पता तो नहीं भी बोल सकते हो, मैं बताऊंगा फिर आपको ना। सर नहीं पता। हाँ अब ये ठीक है, एटलीस्ट इससे मुझे ये तो पता लग रहा है कि आप लोग क्लास में हो, सब शांत बैठे बिल्कुल एकदम। चलो फाइन, अब मैं बता देता हूँ। पॉज मशीन एक बेसिकली एब्रीविएशन है POS। क्या बोला मैंने? POS। POS, यस। पॉज मशीन के लिए एब्रीविएशन है, POS बोलते हैं इसको, राइट। POS का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल। क्या मतलब होता है? पॉइंट ऑफ सेल। राइट, जहाँ पे सेल हुई है वहां पे ये मशीन रखी जाती है, जिसमें कार्ड स्वाइप होता है, जिसमें आप नॉर्मली पेट्रोल पंप पे जाएंगे या रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आप करते हो ना, शॉपिंग पे भी शॉपिंग करने के बाद भी आप जनरली Yes, बिल sir. चुकाने के समय पे कार्ड स्वाइप करते हो मशीन पे। उस मशीन यस सर, को वो छोटा हाँ सा एक रेक्टेंगल टाइप में होता है, उस पे स्वाइप करते हैं। हाँ एग्जैक्टली राइट, उसी को हम बोलते हैं पॉज मशीन। और पॉज मशीन का पूरा नाम होता है पॉइंट ऑफ सेल मशीन। यहाँ पे सेल हुई है, वहां पे आपको पेमेंट करने के लिए कार्ड आप स्वाइप करते हो जिस मशीन पे, उसको पॉज मशीन बोला जाता है। Am I clear? तो उन्होंने क्या किया, रेस्टोरेंट में बिल पे करने के लिए आपने कहा कि कार्ड पेमेंट करना है, वो पॉज मशीन लाके आपके चेयर पे दे देते हैं, आप वहीं बैठ करके बिल पे करिए। बिल पे करने के बाद दे विल आल्सो कम विद अ बोल ऑफ ल्यूक वार्म वाटर, राइट, और यू कैन से लेमन वाटर, जिससे आपके वो हैंड वॉश कराएंगे, प्रॉपर टॉवल उनके हाथ में होगी, उससे आपके हैंड वॉश कराने के बाद आपको देंगे ताकि आप उससे अपने हाथों को भी पोंछ सके। एंड देन व्हाइल मूविंग बैक अगेन, वो जो गार्ड है वहां पे गेट पे खड़ा हुआ है, वो आपके लिए डोर ओपन करेगा एंड देन यू विल बी मूविंग आउट। Am I clear? कुछ कुछ रेस्टोरेंट्स में तो पार्किंग के लिए भी एक बंदा स्पेसिफिकली होता है कि कोई अगर बंदा कार लेके आया है तो आपको पार्किंग नहीं करनी है, आप उस बंदे को चाबी दे दीजिए, ही विल गो एंड ही विल पार्क योर कार। Am I clear? अब आप बात बताओ कि पहले वाला रेस्टोरेंट जिसमें आपको सेल्फ सर्विस लेनी थी और दूसरा वाला रेस्टोरेंट जहाँ पे इतनी फैसिलिटी थी कि आपको बिल्कुल एक रॉयल फील आ रही है, एक रॉयल नो कहना चाहिए ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो दोनों में कोई डिफरेंस है या नहीं है? है। है। अब यहाँ पे मुझे ये जाननी है कि दूसरा वाला जो रेस्टोरेंट है वो भी तो अपनी कॉस्ट कटिंग कर सकता है ना, उस गार्ड को ना रख करके, उतने सारे वेटर को ना रख करके, प्लस इतनी सारी जो चीजें आपको फैसिलिटी वो प्रोवाइड कर रहा है इन सबको ना रख करके। जैसे मैकडी ने कॉस्ट कटिंग कर रखी है, कोई वेटर अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब है उन्होंने वेटर वाली कॉस्ट को कट कर रखा है ना कहीं। लेकिन वो दूसरा रेस्टोरेंट भी तो ये काम कर सकता है, उन्होंने क्यों नहीं किया ये वाली चीज? देखो आप नॉर्मली क्या करोगे, आप मैकडी को और किसी भी 5 स्टार होटल को कंपेयर कर लो, मैंने जो जो चीजें आपको बताई हैं वो सारी 5 स्टार होटल के कॉन्सेप्ट में आती हैं, राइट। अब आप मुझे बताओ कि दोनों के ही केस में दूसरा रेस्टोरेंट अपनी कॉस्ट कटिंग क्यों नहीं कर रहा है? तब वो फिर ब्रांडिंग कैसे करेगा अगर वो कॉस्ट कटिंग कर देगा तो? फाइन, अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताता हूँ, अगर उनको अपने आप को एज अ ब्रांड प्रूव करना है, राइट, तो उनको एक एक छोटी से छोटी चीज में अपने कस्टमर को वो फील लेके आनी है या एक्सपीरियंस देना है जिससे उनके कस्टमर में वो एक्सपीरियंस हमेशा के लिए बरकरार रहे। और वो कैसे हो पाएगा? जब वो एक एक एक्टिविटी से अपने कस्टमर को वो चीज फील कराएंगे। Am I clear? राइट, तो जो ब्रांड वर्ड होता है, यस सर, आपने जैसे अभी फर्स्ट एग्जांपल लिया था डोमिनोज का, मैकडोनल्ड्स का, सॉरी सर, तो सर वहाँ उसकी ऑलरेडी ब्रांडिंग इतनी अच्छी है, राइट, तो उसका एडवर्टाइजमेंट भी बहुत अच्छे आते हैं सर, पर वो कभी भी जो ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके पास टीनेजर्स मतलब हर ही टाइप के कस्टमर्स हैं, राइट। तो जब हम ऐसे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो खाली एक वही ब्रांड क्यों मतलब माइंडसेट में होता है सबके? राइट, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं क्या हो रखा है, मैकडोनल्ड्स ने अपनी जो एक इमेज है, जो गुडविल है, उसे वो केवल और केवल एक इंटरनेशनल ब्रांड होने के नाम पे, इंटरनेशनल नेम होने के नाम पे मिली हुई है, राइट। कहीं ना कहीं अगर वही सेम चीज अगर आज, चलो एक छोटा सा मैं आपसे एक एग्जांपल और शेयर करूंगा, मान लेते हैं जैसा मैकडी का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे आप अपना एक आउटलेट ओपन कर लीजिए, राइट, एंड डू नॉट गिव एनी सॉर्ट ऑफ फैसिलिटी, आपका नाम कोई और होगा जो आपने नया स्टार्ट करा होगा, डू यू थिंक कि उसको भी वही रिस्पेक्ट, वही गुडविल और वही फीडबैक मिलेगा कस्टमर का? नो सर। नो सर। कहीं मैकडी को जो सबसे बड़ा फायदा मिल रहा है, देखो बरेली में जो आउटलेट है ना, इट इज अ फ्रेंचाइजी आउटलेट, इट इज नॉट एन ओरिजिनल आउटलेट, वो एक फ्रेंचाइजी आउटलेट है, लेकिन उस फ्रेंचाइजी आउटलेट को उतना अच्छा फीडबैक, उतना पॉजिटिव फीडबैक क्यों मिल पा रहा है? क्योंकि उसको मैकडोनल्ड्स ने जो ब्रांडिंग कर रखी है इंटरनेशनल लेवल पे, उसका पूरा पूरा फायदा मिल रहा है लोगों के लिए। अपने आप में यही काफी, हम एक इंटरनेशनल ब्रांड के आउटलेट पे जाकर के कोई चीज खा रहे हैं, उसके बाद उन्हें कुछ नहीं नजर आता कि जहाँ वेटर नहीं है वहां पे हमें सेल्फ सर्विस लेनी पड़ रही है, गेट खोलने वाला कोई नहीं है, कोई मतलब नहीं है उस चीज से। उनके लिए स्टेटस सिंबल है कि हम इंटरनेशनल ब्रांड के आउटलेट में जाके खाते हैं,
तो वो जो स्टेटस सिंबल वाली ब्रांडिंग कर दी गई है वो लोगों के माइंडसेट में फिक्स हो गई जाकर के, पहली चीज। दूसरी चीज है, अगर कोई नया रेस्टोरेंट ओपन किया है, अब अगर आपने ही वो नया रेस्टोरेंट ओपन किया जिसमें इतनी सारी फैसिलिटी आप अपने कस्टमर को दे रहे हो, देन बट ऑब्वियस वो सारी चीजें कस्टमर के माइंड में हिट करेंगी एक टाइम पे, और वो आपके रेस्टोरेंट को एक क्वालिटी रेस्टोरेंट, एक अपर क्लास रेस्टोरेंट की लिस्ट में शामिल करने लगेगा अपने माइंड में, राइट? और आपकी ब्रांडिंग लेवल बाय लेवल अप होने लगेगी। Am I clear? यस समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. ब्रांडिंग के साथ साथ अब इस स्लाइड में एक वर्ड जुड़ा हुआ है, वो है पोजीशनिंग, राइट? देखो मैंने अभी आपको क्या बताया कि ब्रांडिंग का मतलब होता है गिविंग योर कस्टमर 360 डिग्री क्वालिटी ट्रीटमेंट, राइट, एंड क्वालिटी एक्सपीरियंस, जिससे आपके ब्रांड को वो, जिससे आपके कंपनी को वो एक ब्रांड मानते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे एक शब्द जुड़ा हुआ है पोजीशनिंग। तो पोजीशनिंग वो पर्टिकुलर प्रोसेस है जिस प्रोसेस के दम पे आप कस्टमर के माइंड में, उसके नजरों में वो इमेज क्रिएट करते हो कि हमारी कंपनी एक ब्रांड के तरीके से काम करती है, या हमारी कंपनी एक ब्रांड है। Am I clear? समझ में आ रही थी चीज? तो पोजीशनिंग इज बेसिकली व्हाट? पोजीशनिंग द कंपनीज इमेज इन द माइंड ऑफ द कस्टमर, right? So brand positioning in total is what? The brand positioning is the process of creating the company's identity in such a way in customer's mind that it takes it as a brand. Am I clear? Right. आप देखते हो, अगर देखो हर तरीके के ऐड आते हैं, आप एक दाग अच्छे हैं सर्फ एक्सेल, राइट, आप उसका ऐड देख लीजिए, और आप एक एप्पल के आईफोन का ऐड देख लीजिए, इट वुड हैव नो लाइक काइंड ऑफ अर्थ एंड स्काई डिफरेंस। Yes, sir. बिकॉज जो प्रोडक्ट है डिटर्जेंट, उस डिटर्जेंट प्रोडक्ट का मतलब है वो डेली यूज का प्रोडक्ट है। एवरी कैटेगरी ऑफ कस्टमर कैन बाय दैट प्रोडक्ट, उसको अपने डेली नीड्स के बेसिस पे, अपने हाउस होल्ड नीड्स के बेसिस पे वो प्रोडक्ट की डिमांड हो सकती है और वो बाय करेगा। तो क्योंकि उसमें इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कस्टमर के लिए जो एड भी बनाया जाता है वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल का बनाया जाता है कि हर लेवल का कस्टमर अपने आप को कोरिलेट कर सके। Am I clear? समझ में आ रही थी चीज, राइट? लेकिन उसी जगह जब आप आईफोन के एड्स की बात करते हो, तो आईफोन का एड्स इतने क्लासिक क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि आप देखते हो कहीं ना कहीं एवरीबॉडी थिंक्स दैट आईफोन इज द स्टेटस सिंबल, राइट? People do not buy iPhones because of its features today. They buy iPhones only because of its being status symbol in the society. Yes, sir. Am I clear? Because honestly speaking, मैंने जब से Oppo के phones को देखा है, मैंने एक चीज साफ साफ उसमें ऑब्जर्व करी है कि Oppo के phones are truly the replica of iOS, of iPhones. iPhones के जितने फीचर्स हैं आपको Oppo के फोन में मिल जाएंगे नॉर्मली। तो जब एक नॉर्मल कंपनी ने उस सारे फीचर्स को लॉन्च कर दिया, बट स्टिल पीपल आर नॉट स्विचिंग टू Oppo, then why? What is the reason behind people are still going for iPhones? The reason is that iPhones are the status symbol in the society, and people thinks the person who is holding iPhones in his hand somewhere belongs to a either upper class family or maybe earns really good. Am I clear? चाहे उस बंदे ने EMI पे ले लिया हो iPhone, लेकिन उसके बाद भी he belongs to upper class family, or he belongs to a very he has a very good lifestyle. ये चीज समझ में आती है, राइट? तो कहीं ना कहीं जो कंपनी ने, एप्पल कंपनी ने जो काम किया वो किस चीज पे किया है? एप्पल कंपनी ने कस्टमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट को लेकर के एक ऐसी इमेज बनाई है दैट ओनली द हाई क्लास पीपल कैन अफोर्ड टू हैव एप्पल आईफोन्स। एंड यस, नो डाउट, इट इज द ट्रुथ। जितने भी पुराने मॉडल हो गए, अगर आप वो लेकर के बैठे हो, दैट इज ओके, बट इन केस इफ यू आर नॉट एबल टू बाय द न्यूएस्ट वन, देन समवेयर द कंपनी सेज कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया उनके अकॉर्डिंगली ही बनाया है। एक टाइम था लोग फोन खरीदना चाहते थे तो मुश्किल से 5,000 रुपए तक का, 8,000 रुपए तक का, क्योंकि उस समय पे वो भी बहुत अमाउंट महंगा था, राइट? कि 8,000 रुपए तक का फोन होता है। लेकिन आज की डेट में आप फोन देखिए, कोई लिमिट ही नहीं है। आप 8 का खरीद लीजिए, 15 का खरीद लीजिए, 25 का खरीद लीजिए, 35 का खरीद लीजिए, राइट? और उसी लिस्ट में आ जाते हैं आईफोन्स। 1,10,000 रुपए का फोन, आजकल सैमसंग का तक का फोन 90,000 रुपए तक का फोन मार्केट में। तो 1,10,000 रुपए का अगर कोई आईफोन मार्केट में है, तो व्हाट डज दैट इंडिकेट? कि कंपनी शोज कि this phone, if somebody is holding, means is having the highest lifestyle, high class lifestyle, or maybe belong to a very good rich family background. Am I clear? लेकिन ये चीजें फील कराने वाला ये पूरा प्रोसेस जो था वो कंपनी ने ही तो क्रिएट किया। कंपनी ने ऐसी एडवर्टाइजिंग करी, कंपनी ने ऐसी ब्रांडिंग करी अपने आप की कि आपके माइंड में पोजीशन कर दिया कि अब एप्पल मींस द हाई क्लास प्रोडक्ट। Am I clear? Right. अगर कोई बंदा नॉर्मली, आप जब भी ट्रैवल करने निकलते हो एंड देन यू गो टू सम पर्टिकुलर प्लेस, सी देयर आर एवरी काइंड ऑफ होटल्स,
है ना। आप होटल जब लेने के लिए जाते हो तो अल्टीमेटली बेस्ड ऑन द पर नाइट कॉस्ट ऑफ अ रूम यू मे फाइंड एवरी लेवल ऑफ होटल्स आउटसाइड इन एनी पर्टिकुलर डिफरेंट टाउन। तो क्या होता है जनरली यू मे प्रेफर टू गो टू सम 3-star होटल, यू मे प्रेफर टू गो टू 4-star होटल, सम पीपल डू नॉट टॉक लेस देन 5-star होटल, राइट। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? अल्टीमेटली जब 5-star होटल की बात आती है सो वो आपको रहने के अलावा तो कुछ और नहीं दे रहे ना, बट दे आर गिविंग यू लॉट्स ऑफ amenities, lots of facilities that makes your stay in that hotel the most comfortable and luxury one. Am I clear? And that's what makes that particular hotel a branded hotel for you as a stay. Am I clear? तो वो उनकी जो सारी की सारी फैसिलिटी है, मैं अगेन आपको मैं वही चीज बता रहा हूँ कि जो उन्होंने सर्विसेज से, अपनी फैसिलिटीज से, अपने सारे के सारे फीचर्स से अपने आप को दूसरे लोकल होटल से डिफरेंशिएट कर दिया है, वही चीज आपके माइंड में पोजीशन करती है that this hotel is a brand. Am I clear? Radisson की जब भी बात आती है तो Radisson is a brand hotel chain in the entire India and the entire world also. कि कहीं ना कहीं आप देखिए काफी ज्यादा लोगों के बीच में रेडिसन पॉपुलर है, और इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती आज की डेट में। देखिए बरेलियंस के लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी बात है ये कि अभी तक केवल रेडिसन बाहर था, लेकिन अब रेडिसन इज कमिंग टू बरेली ऑल्सो, राइट। आपके कॉलेज रोड पे ही, KCMT वाले रोड पे ही जब आप जाते हैं तो इस्कॉन मंदिर जहां पड़ता है उसके थोड़ा सा आगे जाके ही रेडिसन ब्लू होटल ओपन हो रहा है। पहले पिलाशियो नाम से वो ओपन हो रहा था, लेकिन उसके बाद रेडिसन ने उसको परचेज कर लिया, राइट। और अब वो रेडिसन ब्लू होटल के नाम से ओपन हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो खूब लोग अभी इस समय पे एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं उस पर्टिकुलर होटल की, लेकिन सबको मालूम है पहले जब पिलाशियो था नोबडी वाज गिविंग इट इंपॉर्टेंस। जैसे नाम जुड़ गया रेडिसन का, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट दैट देयर इज अ 5-star होटल कमिंग इन द बरेली। एम आई क्लियर? समझ Yes, गए? अच्छा दूसरी चीज आती, आपको क्या लगता है कि रेडिसन ने एकदम से ये इस रोड पे बनने वाले होटल को क्यों परचेज किया होगा? क्योंकि सर एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ। राइट एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा है एंड दिस इज बट ऑब्वियस। पहले क्या होता था, जितने भी स्टार्स कभी कभी बरेली आते थे वो सबके सब जो कुछ मतलब की होटल्स है लाइक सोनटार हो गया, राइट, ये ऐसे जितने अमाया होटल हो गए, तो क्योंकि ये अभी कॉमनली पॉपुलर है बरेली में, इसी में जाके स्टे करते थे। लेकिन अभी तक कोई 5-star होटल की रेंज में नहीं आया था कोई भी, है ना। 3-star में आज की डेट में सोनटार भी है, 3-star की रेंज में आपके पास गाला गैलेक्सी भी आज की डेट में अवेलेबल। लेकिन जब पता है कि एयरपोर्ट पे कोई सेलिब्रिटी आएगा विद फ्लाइट तो वो सबसे नियरेस्ट होटल में जाएगा, और जब नियरेस्ट में ही उसे 5-star मिल रहा है तो वो कहीं और क्यों जाके रुकेगा। क्लियर हो गई ना? तो कहीं ना कहीं जो पूरा कंपनी का काम है, कंपनी ने क्या करने की कोशिश करी है, उसने पोजीशन करने की कोशिश करी है अपने प्रोडक्ट की इमेज को आपके माइंड में इस तरह से कि आप जब उस प्रोडक्ट को रिलेट करते हो तो सर आपको कोई केवल और बंदा केवल आएगा तो सर बाईपास से ही आएगा ना मेन। अगर सर कोई बंदा बाहर से भी आएगा तब भी बाईपास से ही आएगा, तब भी उसको पास में पड़ेगा। तब भी उसको पास पड़ेगा, राइट एग्जैक्टली। चलिए फाइन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। आप देखो कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर लोगों को मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है जो कि आपको देखते ही समझ में आ जाएंगे। इस पर्टिकुलर स्लाइड पे कोई ऐसी पर्टिकुलर इमेज नहीं है, कोई ऐसा लोगो नहीं है जो आप नहीं जानते हो, राइट। सबको मालूम है सारे के सारे लोगो, Yes, sir. राइट। इनमें से कोई ऐसा लोगो भी नहीं है जिनको देख करके आपको ये ना पता हो कि ये कंपनी कौन से प्रोडक्ट में डील करती है। Yes, sir. ये सब पता है। क्लियर है? Yes, sir. ओके। So ultimately जब मैंने बात की what is a brand, so brand is a particular company having its quality value in the mind of the customer is a brand. No matter what the particular product quality is, no matter what the particular no matter what the company's image is there in the market, but अगर आपके कस्टमर के माइंड में अगर आपके प्रोडक्ट की इमेज अच्छी है, आपकी कंपनी की इमेज अच्छी है, तो definitely your customer will treat your company as a brand. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये सारी चीजें मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ब्रांड को जब आप कोरिलेट करते हो तो किस चीज से करते हो, या तो किसी नाम से करते हो, राइट। मैकडोनल्ड्स जब आप नाम लोगे तो मैकडोनल्ड्स के नाम लेने के जस्ट बाद आपको जो उनका कार्टून है जो बिल्कुल उनके आउटलेट के बाहर बैठा रहता है वही याद आता है, राइट। जब आप ऑडी की बात करते हो तो ऑडी का नाम लेते ही वो जो 4 सर्किल वाला उनका लोगो है वो आपको तुरंत याद आ जाता है ना। जैसे आप जैगुआर कार की बात करोगे तो जो उसका पर्टिकुलर लोगो है जिसमें वो पर्टिकुलर नो मे बी दैट लॉयन और मे बी व्हाट डू वी कॉल दैट पर्टिकुलर सिंबल इज देयर। लंबोर्गिनी पे आपको बुल वाला पूरा साइन मिल जाएगा, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि आप किसी ना किसी चीज से कोरिलेट करते हो, अपने माइंड में आपकी इमेज बन जाती है ना। हिंडई में आप देखो कि हिंडई का लोगो मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया हुआ, आपने देखा होगा हिंडई के लोगो में होता है एक ओवल शेप के अंदर एच बना हुआ है, Yes. राइट।
आपको मैं बता दूं कि वो ओवल शेप में एच नहीं है, वो जो शेप ली गई है वो ली गई है एक ओवल शेप के अंदर, दो लोग खड़े हुए हाथ मिला रहे हैं, उसको बनाया इस तरह से है कि वो एक एच बना हुआ है। क्लियर है? यस सर। इसी तरीके से जो आपने, अच्छा ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, एक कॉन्सेप्ट था जो बहुत मेरे को समझ में नहीं आया था जिस समय पे मैंने इसके बारे में सर्च करने की कोशिश करी थी। स्टेट बैंक का लोगो, दैट ब्लू कलर सर्किल जिसमें एक व्हाइट कलर का की होल जैसा पॉइंट बना रहता है, स्टेट बैंक का लोगो है ना ये। Yes, sir. स्टेट बैंक के लोगो के Yes, बारे sir. में मैंने पढ़ा था, तो स्टेट बैंक ने बताया, मतलब स्टेट बैंक के बारे में लिखा हुआ था कि उनके लोगो का मतलब है अ कॉमन मैन इन एन ऑर्डिनरी वर्ल्ड। तो वो जो की होल जैसा साइन हमें लगता है वो की होल नहीं है, दैट इज एन ऑर्डिनरी पर्सन, जिसके लिए, जिसके चारों तरफ एक ऑर्डिनरी वर्ल्ड है, उसके लिए वो बैंक बनाया गया, दैट इज कॉल्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एम आई क्लियर? यस सर। राइट। तो ऐसे अलग अलग चीजों से कोरिलेट करने के बाद आप देखते हो कि कौन कौन सी चीजों से मिलकर के आप ब्रांड की इमेज अपने माइंड में फ्रेम करते हो। तो पहला उसका नाम, राइट। आपके लिए आज की डेट में कंपनी ने इतना ज्यादा पोजीशन कर दिया कि आपको लगता है कि यस, जैसे हम नाम लेते हैं ऑडी, मैकडॉनल्ड्स, जैगुआर, लैम्बोर्गिनी, राइट, और बेंटले, और यू कैन से एप्पल, तो ये सारी कंपनी का नाम सुनते ही आपको दिमाग में आता है कि यस दे आर द ब्रांड, बिकॉज नाम से ही आपने कोरिलेट की सारी चीजें, राइट। नेक्स्ट Yes, sir. अच्छा, स्लोगन्स में अगर मैं बात करूं तो कुछ स्लोगन्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। कौन कौन से स्लोगन्स ऐसे जो बहुत पॉपुलर है मार्केट में और जिनका नाम सुन के आपको समझ में आता है? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल भी लिया था जब मैंने बोला दाग अच्छे हैं, तो किसी को बताने की दाग जरूरत अच्छे, नहीं yes, दाग sir. कौन से वाले अच्छे हैं और किस कंपनी के अच्छे हैं। Perfect. सर यस, सर वो सर एक वो है LIC का सर, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। बिल्कुल राइट। आप देखो, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी जहां नाम आता है सबको पता है LIC है LIC। ना। Yes, sir. इसी तरीके से आप देखो कि ऐसे काफी सारी टैगलाइंस हैं जिनको सुनते ही आपको दिमाग में ही आएगा, अच्छा 2 मिनट में खुशियां, तो मतलब क्या है? सर कैडबरी। Maggie. मैगी Maggie. 2 मिनट में खुशियों की बात हो रही है, मैगी, है ना। Maggie. 2 मिनट सुनते ही सबको पता है कि 2 मिनट में आज की डेट में केवल एक ही चीज बन पाती है, मैगी। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, सब झूठ है ये। 2 मिनट में सर वैसी मैगी तो बिल्कुल नहीं बनेगी जैसे ऐड में आती है। सर 10 मिनट से बन सर 2 हाँ, मिनट में तो दिखाते पैकेट हैं ही खुलता। जानबूझ के सब फ्रॉड कर रहे हैं हमारे साथ, लेकिन पोजीशनिंग करने की कोशिश कर रही है। ये ज्यादा हो गया। चलो फाइन, नेक्स्ट इज व्हाट, करेक्टर्स। आप काफी बार क्या होता है, एक वर्ड है, एक टर्मिनोलॉजी है जिसका मैं आपको जिक्र करूंगा अभी। टर्मिनोलॉजी है ब्रांड इंडोर्समेंट। क्या टर्मिनोलॉजी है? ब्रांड Brand and यस, टर्मिनोलॉजी इज ब्रांड इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट का मतलब होता है कि कोई सेलिब्रिटी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, राइट, तो उसको कहते हैं इंडोर्समेंट, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट। सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट का मतलब है कि प्रोडक्ट को सेलिब्रिटी द्वारा इंडोर्स किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। क्लियर है? राइट। तो जब भी आप बात करते हैं, जैसे प्रोडक्ट है काफी सारे, टाटा स्काई हो गया, राइट, मैगी के केस में अमिताभ बच्चन जी बहुत बार आए, या अगर आप देखो काफी बार जो पॉन्ड्स की क्रीम हो गई, फेयर एंड लवली हो गई, इसमें कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, एक्टर्स हैं जो फिक्स हैं, यही आएंगे, तो कंपनी का इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो काफी बार क्या होता है, आप उस सेलिब्रिटी को देख करके, क्योंकि वो सेलिब्रिटी आपका फेवरेट है, तो कहीं ना कहीं कंपनीज ब्रांड करने के लिए उन सेलिब्रिटी से एडवर्टाइज कराती हैं, ताकि आप अपने फैन फॉलोइंग की वजह से वही प्रोडक्ट यूज करने लग जाओ जो आपका वो पर्टिकुलर फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस करती हैं। Am I clear? नेक्स्ट कम सिंबल। जब हम बात करें, नेक्स्ट आती है सिंबल्स की, तो सिंबल्स में क्या होता है जनरली कि कुछ पर्टिकुलर ऐसे सर कैटरीना कैफ आइकन्स होते जैसी हैं, ऐसे सिंबल्स होते हैं ad जिनको आप करती है। माइंड में फिक्स कर लेते हो। जैसे मैं आपको एक छोटा सा आइकन दिखाता हूँ अभी, आपसे उसका मतलब भी पूछूंगा मैं, यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर करूंगा मैं अभी यहाँ पर। I'm stop sharing the PowerPoint presentation and will take you to this Chrome window. Is it visible? यस yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. ये तो सबने सुना होगा ना, सर Yes. आइसक्रीम आएंगी Yes, इसकी तो। sir. Yes, sir. है ना। डोमिनोज के बराबर में इसका आउटलेट है, ये भी पता होगी सबको। यस सर। अब बंद हो गया। Yes, क्या sir. पता है? सर अब कुछ और खुल गया सर, मैट्रिक्स खुल गया वहाँ पे। हाँ, मैट्रिक्स खुल गया, नहीं वहां पे उसके बराबर में कोई नॉनवेज की शॉप खोल दी है। कितने बदतमीज हैं ये लोग। सर Non-veg मैट्रिक्स shop। था पहले से। चलो ठीक है, अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। राइट, ये लोगो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? यस सर। Yes, sir. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लोगो? तो आइसक्रीम का ब्रांड है ये।
सर कुछ नहीं, ये तो नंबर पता है, लेकिन इस लोगो में कुछ और नजर नहीं आ रहा। सर 13 और 12 भी आ रहा है। 31 लिख के आ रहा है, 13 and 12, yes sir, Yes, sir, 13 and 12. 13 राइट? 13 and 12। Yes sir. चलो मैं एक बार बता देता हूँ, 12 का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उन्होंने बी और आर को इस तरह से बनाया है जिसमें 3 और 1 अलग से हाईलाइट होता है, which indicates that Baskin Robbins keeps 31 different types of ice creams in their outlet. Oh, wow. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Companies positioning and image building only in your mind कि वो आपको कैसे अपने बारे में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करती है, राइट? ये एडवर्टाइजमेंट केवल और केवल यूएस में ही पॉपुलर हुए हैं, जिसमें उन्होंने ये चीज बताई सबको कि कहीं ना कहीं कितनी वैरायटीज हैं जो कि बस्किन रॉबिन्स के आउटलेट पे आपको मिल जाएंगी। तो बस्किन रॉबिन्स के आउटलेट पे आपको जो टोटल मिलेंगी वो है 31 टोटल डिफरेंट टाइप्स, जो आपके उनके आउटलेट से समझ में आती है। विद कितना दिमाग लगाते हैं लोग। कितना दिमाग लगाते हैं। तो यही है मार्केटिंग और यही है ब्रांड इमेज, ब्रांड पोजीशनिंग। इस लोगों में इन्होंने क्या खास किया है, कोई बता सर A सकता to है? Z प्रोडक्ट सर A to Z सारी थिंग्स में A to Z। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे एक तो इन्होंने दो चीजें करी हैं यहाँ पे, एक आपको बताने की कोशिश करी है A to Z ऑल द प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, राइट? एंड साथ ही साथ उसमें उन्होंने एक और चीज आपको बताई है कि A to Z आपके सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, प्लस स्माइल भी वहाँ पे आपको विजिबल है, Yes, sir. Yes sir। राइट? Yes, sir. ऐसे कुछ और प्रोडक्ट्स भी हैं जो मैं आपको यहाँ पे शोकेस करूंगा। अच्छा, ये आप शायद नहीं बता पाओगे मुझे। Lakme. लैक्मे। नहीं, लैक्मे की स्पेलिंग मेरे को ये वाली क्लियर नहीं है, क्या होती है लैक्मे की स्पेलिंग? Sir, LAK. सर के होता है। ये मैंने इसलिए पूछा है यहाँ पे क्योंकि मेरे को इसलिए क्लियर नहीं है, कभी मैंने यूज ही नहीं किया प्रोडक्ट। ये तो बता देंगे लड़कियां देखियो। अच्छा, अब आप लोगों को मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा, यू पीपल वॉन्ट लिटरली बिलीव, आपको सीरियसली बिलीव नहीं होगा कि लैक्मे का नाम कहाँ से आया है। कोई बता सकता है? Sir, कहाँ से पता आया? नहीं सर। नंदनी बताइए। ये लैक्मे बता सकता है कोई कहाँ से आया है? No, sir. वो सर। नहीं पता है? चलो तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जो लैक्मे का नाम रखा गया है, लैक्मे का नाम रखा गया है लक्ष्मी से। हैं? यस, लक्ष्मी को लैक्मे नाम दिया गया है यहाँ पे। अरे अच्छा, रेनबैक्सी वाला नहीं सुना आपने? काम किसने किया? Yes sir. रेनबैक्सी सुना? Yes, sir, सुना है। रेनबैक्सी बना है रणबख्शी से। हिंदी में वर्ड होता है रणबख्शी, मतलब मैदान में जिसको कोई ना हरा सके, उस बेसिस पे नाम बना रेनबैक्सी, राइट? एंड एक ब्रांड है जो सबसे पुराने टाइम पे अगर आप बात करोगे, आप सबको पता है कि जो मेल्स के क्लोथिंग होते थे उसमें पैंट को बोलते थे पतलून, बोलते थे? यस सर। सब कहते Right? थे That पतलून पतलून हो गई। becomes pantaloons. पतलून का पैंटल बना दिया। अरे सर ये है बेटा, जिससे आपको अल्टीमेटली आप जब इन चीजों के बारे में एक बार सुन लोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं। सो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट की इमेज बिल्डिंग होती है वो ऐसी ही चीजों के बेसिस पे की जाती है जो अल्टीमेटली कस्टमर के माइंड में फिक्स हो जाए जाके। Am I clear? Yes sir. Okay. So taking you back to the slide. सर अब तो अगर मैं पैंटालून्स जा रहा हूँ यही कहूंगा, पतलून पतलून के बाद वहां जा रहा हूँ। नेक्स्ट इज लोगो हो गए आपके, जो पर्टिकुलर लोगो हैं, जैसे मैंने आपको दोनों एग्जांपल भी दिखा दिए, Amazon का और बस्किन रॉबिन्स का। और सबसे लास्ट इज इंटरनेट एड्रेसेस। आजकल लोग देखो ब्रांडिंग जो है काफी बार क्या करते हैं, इंटरनेट के URLs के बेसिस पे करते हैं। क्यों, क्या होता है, हर कंपनी को पता है कि आज की डेट में इंटरनेट पे ही सारा काम होना है, तो कंपनी इंटरनेट एड्रेस को कैसे याद रखेगी, राइट? तो आप लोगों ने एक कंपनी का नाम सुना होगा, Tatolo.com। ये कंपनी है, एक लोकल सर्च के लिए शॉपिंग वेबसाइट है Tatolo.com, राइट? इसी तरीके से एक कंपनी है Bitudal, जो कि बुक्स के लिए, ऑनलाइन बुक्स के लिए। ऐसी एक कंपनी है मार्केट में। हाँ, मुझे एक बहुत अच्छा नाम याद आ रहा है इस समय पे। व्हेन आई वाज इन दिल्ली NCR, जब मैं नोएडा में था इन 2016, राइट, आई वाज डूइंग जॉब देयर। तो जिस अपार्टमेंट में मैं रह रहा था उस जगह पर, वहां पर पास में ये कंपनी थी जिसकी वेबसाइट थी onlinekapdeधुलाव.com। आप समझ जाओ कंपनी का नाम ये है, तो यानी कि उन्होंने साथ ही साथ आपको याद भी करा दिया कि हम इसी वेबसाइट पे मौजूद हैं, onlinekapdeधुलाव.com।
जितने भी लोग हैं, जितने भी ऐसे यंग लोग हैं जो कि जॉब कर रहे हैं बाहर, जो कि नॉर्मली इंडिपेंडेंटली वहां पे रह रहे हैं, दे हैव नोबडी एल्स टू वर्क अलोंग विद, या फिर उनके पास इतना टाइम नहीं है, उन्होंने सीधे उस वेबसाइट पे जाना है, नंबर ऑफ क्लोथ्स जितने उन्हें धुलने के लिए देने हैं वो सिलेक्ट करने हैं, टोटल वेट उसका डिसाइड होगा, एंड देन समबडी विल कम एट योर डोरस्टेप एंड विल बी टेकिंग ऑल द क्लोथ्स अवे, धो करके वापस दे जाएंगे आपको। इससे अच्छी चीज क्या है ना? यस सर। Yes, साथ ही साथ आप देखो सर अब तो आपकी कंपनी शादी जैसे होगी, वहां पे अब तो ऑनलाइन सर्टिफिकेट वीडियो कराओगे। वैसे वहां पे repairkarao.com थी, राइट? उस रिपेयर कराओ के कॉन्सेप्ट को बरेली में एक मतलब देयर इज अ गर्ल हु आई नो, SRMS की पास आउट है वो, एंड उसका नाम है लुबना। उसने स्टार्ट किया अपना बिजनेस, उसने बिजनेस का नाम रखा servicewala.com, राइट? तो सर्विस वाला में भी यही उन्होंने कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं कि जो भी सर्विस आपको घर पे चाहिए, हेयर कटिंग चाहिए, मेकअप चाहिए, मैनिक्योर, पेडिक्योर, तमाम चीजें, बॉय हेयर कट, बाकी घर के रिपेयर में अगर आपको कोई फ्रिज खराब हो गया है या एसी खराब हो गया, तो सारी चीजों के लिए आप जो टेक्नीशियन है, जो बंदा है, आर्टिस्ट है, उसको सब सीधे स्टाइलिस्ट को आप घर पे बुला सकते हैं, दे विल गिव यू ऑल सर्विसेज एट होम, राइट? एंड एक इसी तरीके का एक नाम था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जो दिल्ली NCR में चलता है इसी टाइप की सर्विस के लिए, अर्बन क्लैप। दिल्ली NCR में इसी सर्विस को अर्बन क्लैप के नाम से यूज किया जा रहा था। मतलब अर्बन क्लैप भी कंपनी यही काम कर रही थी कि लोगों को डोर स्टेप सर्विस प्रोवाइड करती थी। उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के सर्विस वाला के नाम से ये लोग यहाँ लेकर के आए हैं, राइट, बरेली में। सो अल्टीमेटली मैंने आपको तरीका बताया ही था कि दो तरीके हैं आपके पास, या तो वो काम करो जो उसकी मार्केट में ऑलरेडी डिमांड है, या फिर वो काम करो जिसकी डिमांड आप मार्केट में क्रिएट कर सको। समझ में आती है ब्रांड एलिमेंट्स? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। No, sir. no, sir. अल्टीमेटली आप देखो कि अरे कोई भी पीलीभीत में भी है बदनाम लस्सी वाला। सॉरी, हाँ, yes, sir. सर पीलीभीत में भी है एक बदनाम लस्सी वाला। हाँ, तो ये भी है, और ऐसे काफी सारे लोग हैं जैसे एक छोले का भी, मतलब मैंने देखा है कि छोटी से छोटी चीज में भी लोग ऐसे काम करते हैं। जैसे आप लस्सी का नाम ले लो तो ऐसे छोले मिलते हैं, तो किसी ने उसका नाम रख रखा है बेकार छोले। अब बेकार छोले तो आई डोंट नो खाएगा कोई क्यों। चलो फाइन, मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में जब भी कोई चीज देखते हो तो किन पर्टिकुलर फैक्टर्स पे डिपेंडेंट रहते हो। ऐसी चीज जो आपको याद रहे, जिसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग हो। जैसे मैंने आपको बता दिया बस्किन रॉबिन्स में 31 का मतलब है 31 वेराइटीज, तो आपको हमेशा याद रहेगा, राइट? और इसका मीनिंग भी है अपने आप में। ऐसी कोई चीज जो कि आपको पसंद आए उस पर्टिकुलर चीज में, ट्रांसफरेबल, यानी कि आप देखो कि कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर जो एक आपके माइंड में इमेज है वो इजी ट्रांसफरेबल हो, कि कोई भी आपसे कुछ भी पूछता तो आप नॉर्मली तुरंत प्रेडिक्ट कर लेते हो और बता पाते हो किसी को। अडैप्टेबल हो, कि आप इजी अडॉप्ट कर पाओ, क्योंकि काफी बार क्या होता है कुछ ब्रांड की टैगलाइंस या कुछ ब्रांड के नाम या उनके प्रोडक्ट के नाम ऐसे होते हैं जिससे आप कोरिलेट नहीं कर पाओगे, है ना? तो अडैप्टेबल होना चाहिए आपके ब्रांड का इमेज है, और प्रेडिक्टेबल आपके पर्टिकुलर आपके क्राइटेरिया को लेकर के। आपका ब्रांड आप किसको मानते हो कि एक ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो कि मेरी इमेज को या मेरे पर्टिकुलर नीड्स को प्रोटेक्ट करता है। Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Coming on to next, what is positioning? इसके बारे में जब हम अभी मैंने आपको बता दिया पोजीशनिंग वही पर्टिकुलर प्रोसेस है, वही पूरा प्लान है जिसके बेसिस पे आप अपने कंपनी के इमेज को डिजाइन करने की कोशिश करते हो कस्टमर के माइंड में। तो वो पूरा जो प्रोसेस कहलाता है वो पूरा पोजीशनिंग प्रोसेस कहलाता है, राइट? तो आपको जो ब्रांडिंग एक्सपीरियंस देना है अपने कस्टमर को, वो नॉर्मल अपने सर्विसेज से तो देना ही है, फैसिलिटीज से तो देना ही है, लेकिन कंपनी का नाम, लोगो या उसका प्रोडक्ट जो है उससे भी देना है कहीं ना कहीं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जब हम फॉलो करते हैं और कस्टमर के माइंड में एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रांड पोजीशनिंग। Am I clear? Yes. Right. इसके बारे में there is lot to discuss. You can see कि 7th slide पे हैं हम यहाँ पे, and there are 39 Yes, slides in this 39. particular presentation. So there is lot more to discuss about brand positioning that I'll be discussing in the next class. Right. Today being a little busy, I may not be able to discuss much, but in the next class we'll surely meet and discuss much more about brand positioning. Am I clear? Yes, Okay, sir. sir. So there are 22 students in the class right now. I'm going to take the screenshot and I'm going to post that same in your class group also to mark your presence, right? सर मेरी कल की भी लगा दियो, कल आया था मैं। भी लगा दियो, मैं नहीं लगा पाऊंगा बेटा ऐसे तो, ठीक है? चलिए fine, we'll be discussing about target positioning in the next, market positioning in the next class, right? Till then, have a great day. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir.